Bismillahirrahmanirrahim. Good evening, students. That I hope that you will be enjoying good health. You know, the Pakistan and the whole world is passing through very critical and sensitive time of the history. So we should do the best in the worst. What we can do as teachers, we are doing. What you should do as students, we should do. Come on, don't be hopeless. Stay safe, stay home, everything. But stay in contact with me. I assure you that you will learn if you ever join me. If you are not learning and you are watching my YouTube channel, you must complain. You must protest even. I am there to listen to you. So if you are learning, then you should not be lazy. So come on. Today, I am going to deliver the final lecture on the concept of concord. That is the third lecture of this series. And it is very important, very interesting, very easy. I will try to sum up the whole area of concords. It is the revision and it is the final touch to the concept of concord. Without any delay, we should go towards the slides. Yes. The first slide, if two subjects, one single and one plural, are connected by either or are, neither or nor, the verb agrees with the nearer subject. ये भी discuss कर चुके हम last slide में. With good speech, these are the neat and clean and final slides. Those students who could not listen even the previous lectures, they can gather everything from this last lecture. So neither the players nor the coach is joining. You know that players are in plural. लेकिन अब players ज्यादा हैं. लेकिन जो is लगा है ना ये कोच के हिसाब से लगा है. ये is वहद को शो करता है. वहद वर्ब है तो इसके करीब तरीन कोच था. यानी जो is के करीब तरीन है उसके मुताबिक ही यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगना है. यानी यहाँ अगर प्लेयर्स होते कोच की जगह पे तो फिर इसकी जगह पे आर होता. चूंकि नियरेस्ट जो वर्ब के थे वो कोच प्लेयर्स आ जाने थे, जमा आ जाना था. यानी वर्ब के जो करीब होगा वो उसके मुताबिक यूज होगा. पहले वर्ब से पहले, ठीक है, बाद में नहीं. वर्ब से जो पहले नियरेस्ट जो उसका रिश्तेदार होगा वो ही उसके मुताबिक वो चलेगा. तो नाइदर द प्लेयर्स नॉर द कोच इज ज्वाइनिंग. अब जिन बच्चों ने कभी कॉन्कॉर्ड के ऊपर लेक्चर नहीं लिया, यकीन करें वो बड़े आराम से आर लिखाते हैं. एफएससी के बच्चे बहुत बड़े लेजी होते हैं, केयरलेस होते हैं. यार इंग्लिश का क्या है, तो फिर इंग्लिश भी पुत्र करियर खराब कर देती, याद रखना. तो आइदर द कंडक्टर और द सिंगर्स आर अटेंडिंग द कंसर्ट. अब देखे ना आर आ गया है क्योंकि सिंगर्स ज्यादा हैं. कंडक्टर पहले चला गया, यानी जिस तरह ऊपर वाले फिक्रे में कोच पहले था और वो सॉरी प्लेयर्स पहले थे, कोच बाद में था. कोच सिंगल था, इज लगा. अब कंडक्टर सिंगल है, पहले सिंगर्स ज्यादा है, प्लूरल है तो आर लगा. रूल है. देखिए ग्रामर द साइंस ऑफ लैंग्वेज, ग्रामर इज द मैथमेटिक्स ऑफ लैंग्वेज. इट इज वेरी इजी. प्लीज, इट इज वेरी क्लियर टू फॉलो. प्लीज राइट डाउन. Yes. If a singular subject followed by intervening words or phrases such as with, as well as, we have already discussed it in the previous lectures. Previous sum up, we are going to sum up, revising, it is revision. In addition to, accompanied by, together with, no less than, takes a singular verb. याद रखना.
Jack, accompanied by his sisters, is enrolling in PCC. देखिए ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब जैक पहले आया, अकंपनीड बाई के बाद, हालांकि सिस्टर ज्यादा है, लेकिन वर्ब क्या सिंगुलर है, इज है। ये किसके हिसाब से लगा है? जैक के हिसाब से। रूल क्या है, ऊपर वाला रूल दोबारा देख ले, लिख ले। A singular subject followed by intervening words or phrases such as with, as well as, in addition to, accompanied by, together with, and no less than, एक singular verb। नीचे देखे, daddy as well as my mother, my brothers is enjoying the party। अब डैडी, हालांकि ब्रदर्स भी ज्यादा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन, तो ये प्लीज याद रखना, ऊपर जैक के हिसाब से लगा है और नीचे डैडी के हिसाब से। दोनों सिंगल थे, दोनों का सिंगुलर वर्ब है। नेक्स्ट इज singular subject joined by and require a plural verb except when they mean one thing। very clear and very simple। Larry and Mercy are reading novels। सीधी सी बात है, जब भी and आ जाए ना, यूं कह ले दरमियान में, चीजें जमा हो जाती हैं। and they take the plural verb, are वर साथ लेंगी, have लेंगी। my teacher and friend is here। अब ये एक ही बंदा है, टीचर भी फ्रेंड भी है। जब एंड दो एक ही चीजों को डिस्कस कर रहा हो, यानी एक वो नाउन है तो एक उसका एडजेक्टिव है, या वो एक उसका साथ उसका अदर प्रोनाउन है, तो जो भी इसके साथ आए और दरमियान वो, लेकिन वो डिस्कस एक ही बंदा, यहाँ बंदा एक टीचर ही है, वही टीचर है, वही दोस्त है। जब एक चीज को डिस्कस किया जाए, जब बेशक दरमियान में एंड बी आ जाए, तो भाई वर्ब सिंगुलर होगा। बच्चे क्या करते हैं, आमतौर पे ये रूल लिखा होता है आम ग्रामर्स के अंदर, यार जहां भी एंड आएगा वो जमा हो जाएंगे। बेटा गर्क हो जाता है पुत्र, ये बात याद रखना। Expressions of time, money, weight and distance are singular even if the form is plural। याद रखना, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर। 2 years is a long time to wait। अभी मैंने कहा था लास्ट लेक्चर में, ये ड्यूरेशन को शो कर रहा है, ये एक होल को शो कर रहा है, ये इंडिविजुअलिटी नहीं है, तो ये क्या है, इज आएगा। $1 million was given back to the owner। $1 million is showing one amount, ठीक है, तो इट विल टेक द सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट इज when the amount of money refers to the separate units। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब एक होल के अंदर इंडिविजुअलिटी आती है, इंफरादियत आती है, एक दो बंदे के दरमियान में बात आ जाती है और जो होल नहीं रहती चीज, तो फिर वो प्लूरल हो जाती है। द वर्ब इज प्लूरल। 520 centavo coins were found। 525 centavo coins were found। 60 100 peso bills were added to the budget। So it is, I think you will have followed कि जब अमाउंट के अंदर इंडिविजुअलिटी आ जाए, क्वाइन जब ज्यादा है, ठीक है, 60 के अंदर पैसे बिल्स हैं, बिल्स भी ज्यादा है, एज वन होल नहीं शो रहा। क्वाइंस और जो बिल्स ने इसको इंडिविजुअलिटी के एरिया में ले गए और ये साथ वर्ब प्लूरल हो गया। यस, तो फॉलोइंग वर्ड्स आर ऑलवेज प्लूरल टेंस। ये लिख लें, ये मैं पहले लेक्चर में भी कह चुका हूं, इसमें थोड़ा और भी इजाफा है। पैंट्स, ट्राउजर्स, फ्लाइज, सीजर्स, shears, tongs। However, if the word pair is used, the verb is singular। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एक्सेप्शन है। पेयर सिंगुलर है, ये आप नोट कर लें, यही आते हैं पेपर्स के अंदर, और कहीं से कोई चीज नहीं आती है। ऊपर वाले की ये फिलॉसफी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी कि जब दो चीजें मिलके एक चीज बनाती हैं, तो आम तौर पे
99.9% वो प्लूरल शो। जिस तरह सीजर्स के दो हिस्से होते हैं, ऐसे सीजर बनती है। shears, tongs, pliers, trousers के भी दो पार्ट्स होते हैं, पैंट के भी दो पार्ट होते हैं। तो पैंट्स आर torn into two. The pair of scissors was placed on the table. Certain noun the plural in form or singular in meaning, जिसको हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, notional concords. It is basically notional concord. लगता कुछ है, होता कुछ है। हम पहले भी सेम एग्जांपल पढ़ चुके हैं। मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, हिज मैथमेटिक्स आर नॉट गुड। ये अलग से फिक्र, वो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। द लेटेस्ट न्यूज इज अलार्मिंग टू दी पब्लिक। ये न्यूज लगता जमा है लेकिन ये सिंगुलर होता है, बट वेरी सिंपल। Next, when the word is preceded by a, it takes a plural verb. When it is preceded by the, it takes a singular verb. यानी यूं कह लें, जब किसी से पहले a आए, when preceded by a, तो वो हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है, और जब इससे पहले दी आए तो वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। A number of students are waiting outside. The number of students is waiting outside. A number of students, बेसिकली इसमें लॉजिक ये है कि कॉमन शो करता है। दी नंबर ऑफ स्टूडेंट एक पर्टिकुलर जो स्टूडेंट्स का ग्रुप है, दी ने उसको पर्टिकुलराइज कर दिया। आपको पता है डी डेफिनेट आर्टिकल है और चीजों को ये पर्टिकुलराइज करता है, और ए है वो जो जनरलिटी को शो करता है, कॉमन नाउन्स के लिए यूज होता है। When fractions are used, verb agrees with the object of phrase. सीधी सी बात है, जब फ्रैक्शन आ जाए, 1/2 of the cake was consumed, जब किसी चीज के पीसेस कर दिए जाए। 1/4 of the employees were attending the seminar. When the fraction, जब दोबारा देखें, verb agrees with the object of the phrase, जो बाद में आता है ना उसके मुताबिक verb लगना है। अब was, 1/2 of the cake was consumed, 1/4 of the implies work, cake single implies plural. The nouns may be singular or plural in meanings. It is notional concord. Athletics, genetics, politics, gymnastics, statistics. When the noun refers to an organized activity, it is singular. When the noun refers to the activities of the individuals within a group or to the various activities, it is plural. Examples are there. Gymnastics is a very popular among girls. Gymnastics shown in the field today were outstanding. The name of a country is always regarded as singular. याद रखना, मुल्कों के नाम आम तौर पे सिंगुलर होते हैं। बात को उनका ऐसे लगा होता है, बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर यूनाइटेड नेशंस है, फिर यूनाइटेड स्टेट्स है, बहामस है, फिलिपाइंस है, फिलिपीनीज है, और जो भी मतलब बहुत सारे वर्ड है जिनके बाद ऐसा आता है, लेकिन वो एस को देख के आपने उसको प्लूरल नहीं समझ लेना। तमाम कंट्रीज आमतौर पे 99.9% सिंगुलर शो होती है। Adjectives used as nouns are considered plurals. याद रखना, वो adjectives जो नाउन बन जाए, जो एक क्लास को शो करें। The poor are to be helped, the rich are to be helped. यानी the poor, poor की जमा क्या होती है, प्लूरल क्या होता है, the poor. Rich का प्लूरल क्या है, the rich. The rich जब भी आएगा आर आएगा, the poor जब भी आएगा आर आएगा। Efficient are what this country needs. यानी कि जब एज ए होल किसी क्लास को, किसी तबके को शो करता है,
एडजेक्टिव, पुअर क्या एडजेक्टिव है, एफिशिएंट क्या एडजेक्टिव है। द एफिशिएंट वो बासलाहियत लोग आर व्हाट दिस कंट्री नीड्स, जो इस मुल्क को चाहिए। Yes. Collective nouns may be singular or plural depending on whether the individual members are acting individually or collectively. These nouns are company, group, committee, crowd, jury, flock, team. देखिए, ये पहले भी हम 2 लेक्चर में इसको डिस्कस कर चुके हैं। कमेटी जब एज ए होल एक एंटिटी को शो करती है तो फिर ये सिंगुलर नाउन है। ये सबसे बड़े कंफ्यूजिंग ये 5-6 वर्ड्स है। और जब ये इसके अंदर कोई इख्तलाफ है, ये एज ए होल नहीं है, किसी एक 10 मेंबर है, 3-4 मेंबर की एक रहा है, 6 मेंबर की एक रहा है, तो फिर ये क्या है, फिर ये प्लूरल बन जाएगा। और अगर ये अग्री है, वन थिंग है, तो देन इट इज सिंगुलर। ठीक है, तो कमेटी इज अगेंस्ट द प्लान, कमेटी पूरी अगेंस्ट द प्लान के, इत्तेफाक कमेटी में सिंगुलर नाउन लेगी, इज आएगा। द कमेटी आर ऑफ डिफरेंट ओपिनियन, कमेटी की मुख्तलिफ राय है, यानी मैंने वही कहा ना, जब इंडिविजुअलिटी आ जाए, जब एक बंदे की एक बात है, दूसरे बंदे की दूसरी बात है। देखिए, खाना मंगवाना है कमेटी ने, एक पसंद कर रहा है बर्गर, दूसरा पसंद कर रहा है ब्रेड, तो कमेटी आर डिमांडिंग सम फूड, कमेटी आर आ जाएगा। अगर सारी कमेटी ने एक ही चीज खानी है, एक ही चीज की जरूरत है, वो एज ए होल शो हो रहा है, उनके अंदर इंडिविजुअलिटी नहीं आ रही है, देन कमेटी विल बी सिंगल। In the use of mathematical expression, the following are accepted. 7 plus 3 is, याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। 7 and 3 are 7, 5 times 2 are 5 minus 2 is, ये आपने सीधे सीधे फार्मूले माइंड में रख लेने हैं। ओके, name the organizations, take a singular verb when the whole organization is referred to and a plural verb the members are referred to। वही पहले वाली स्लाइड वाली फिलॉसफी है, वही जो नोशनल इसके अंदर कंकॉर्ड आता है। ठीक है, लॉपीज एंड सन्स इज अ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक चीज को शो कर रहे हैं, लगता ही है कि ज्यादा को शो कर रहे होंगे। लॉपीज एंड सन्स आर होल्डिंग अ 2-day एनुअल मीटिंग। डिपेंड करता है कि फंक्शन क्या है। दोबारा इस रूल को पढ़े, नेम द ऑर्गेनाइजेशन, टेक अ सिंगुलर वर्ब व्हेन द होल ऑर्गेनाइजेशन इज रिफर्ड टू, जब पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कोई बात हो तो फिर वो सिंगुलर है, और जब उसके मेंबर्स के बारे में बात हो, किसी डिपार्टमेंट के बारे में बात हो, तो फिर क्या होगा, ये प्लूरल। जिस तरह वो होल्डिंग ए 2-day एनुअल मीटिंग, अब मेंबर्स आ गए इसमें, अब मीटिंग जरा मेंबर्स करेंगे, तो ये इंडिविजुअलिटी आ गई, अब ये प्लूरल बन गया। Title of books, plays, articles, movies are regarded as singular when the word in the title may be plural. In Dreams Begin Responsibilities is a story by Dr. Chavers. Great Expression is a must-read novel. सिंपल सी बात है, उनके नाम सिंगुलर होते हैं बुक्स के, नोशनल कॉन्कॉर्ड है, बात बात लगता ही ऐसा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। If a sentence begins with expletive it, the verb is always singular, even if the subject that follows the verb is plural. ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बड़ी डिफरेंट है। यानी जब इट जो है वो इंट्रोडक्शन करवा रहा हो किसी नाउन की, इट इज द स्कूल्स which must assume the responsibility.
हालांकि स्कूल प्लूरल है लेकिन assumes नहीं आया, सॉरी assume आया, assumes नहीं आया. If the sentence begins with expletive, the verb is always the subject that follows the verb is plural. It is us who must take care of the environment. It is us who must take care the environment. ठीक है. It is the schools which. अब देखिए which भी सिंगुलर को शो करता है और who भी सिंगुलर को शो करता है. हालांकि ये दोनों us भी प्लूरल है और schools भी प्लूरल है. If sentence begins with expletive it, the verb is always singular. Okay, same slide. Last slide. If sentence begins with the expletive it, always singular. Okay, Janab, thank you very much. So lecture today really is very important. So try to watch, rewatch, try to note. I should not claim, but I can claim that such clear and very easy sentences are rare, and such lectures are rare in the market. You may explore, you have the right to, but if you think that these slides are very informative, so don't be miser, don't be generous, share it, tell the people, be sincere with the nation. Thank you very much.